بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پچھلے چند ماہ سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ سے بوری بند لاش ملی۔ ان میں بعض لاشیں ایسی بھی ملیں جن کے سر غائب تھے۔ یہ لاشیں پولیس کے لیے مصیبت بن گئی ہیں اور سر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شناخت ناممکن نظر آتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ وارداتیں لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ قتل و غارت کی خبریں اتنی کثرت سے اخباروں میں چھپتی ہیں کہ اب لوگ انہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں 100 بچوں کے قتل کے خبروں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کوئی قتل ہو جاتا تھا تو کوہرام مچ جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ 100 سے زیادہ بچے غائب ہو گئے اور پھر ایک گنجان آباد محلے کے مکان میں ان کو قتل بھی کیا گیا اور پولیس سمیت محلے دار بھی اس سے بے خبر رہے۔ اس المناک واقعے کے پیچھے جہاں پولیس کی نااہلی کا ہاتھ ہے، وہاں لوگوں کی بے حسی بھی افسوسناک ہے۔ ہمارے وقتوں میں قتل، چوری، ڈکیتی کی کوئی واردات ہو جاتی تو متعلقہ علاقے کے تھانے دار کی جان عذاب میں آ جاتی۔ انگریز افسر باقاعدگی سے روزانہ رپورٹ مانگتے اور جلد از جلد ملزم مانگتے تھے۔ میں نے شروع میں بوری بند لاشوں کا ذکر کیا ہے۔ اخبار میں بوری بند لاشوں کی خبریں پڑھ کر مجھے ایک بوری بند لاش یاد آ گئی جو میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا کیس ہے جب پاکستان کا تصور ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ میں موجودہ ہندوستان کے ایک قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے ارد گرد کافی گاؤں تھے۔ جرائم کے معاملے میں یہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ بڑا جرم مثلاً قتل اور ڈکیتی وغیرہ بہت کم ہوتا تھا، البتہ لڑائی جھگڑے اور معمولی چوری چکاری کی وارداتیں اکثر ہو جاتی تھیں۔ ایک صبح 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک قریبی گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے جن کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ تینوں لڑکے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبردار نے لوگوں کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود میرے پاس آ گیا۔ یہ نمبردار ہندو تھا اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام آنند رام تھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے۔ تھوڑی تعداد میں سکھ بھی تھے۔ یہ تینوں قومیں مل جل کر رہتی تھیں۔ اگر کبھی ہندو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر بدمعاشی کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان ان سے نمٹ لیتے تھے۔ اس ہندو نمبردار نے اندر آتے ہی تقریباً رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خوشامد اور چاپلوسی والی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ وہ جس کام سے آیا ہے اس کے متعلق بات کرے۔ اس نے جو بات بتائی وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ اس قصبے سے ایک چھوٹی سی نہر گزرتی تھی۔ جہاں جہاں سے یہ نہر گزرتی تھی وہاں کے لوگوں نے آب پاشی کے لیے نالے بنا لیے تھے اور ان کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس علاقے میں کنویں بھی بڑی تعداد میں تھے جن سے کھیتوں کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ نہری پانی کی سہولت کی وجہ سے لوگوں نے کنوؤں کا استعمال بہت کم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے کنویں بے آباد اور ویران ہو گئے تھے۔ ایسے ویران اور بے آباد کنوؤں کو ڈل کہا جاتا تھا۔ ان ویران کنوؤں کے اندر جنگلی کبوتروں اور دوسری نوع کے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دیہاتی لڑکے ان کنوؤں سے پرندوں کے انڈے اور بچے نکالنے کے لیے اکثر ان کے اندر اتر جاتے تھے۔ یہ جو 3 لڑکے نمبردار کے ساتھ تھانے میں آئے تھے ایسے ہی ایک ویران کنویں میں اترے۔ انہیں کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا اور بوری پانی کی سطح کے اوپر تھی۔ لڑکوں نے سمجھا کہ بوری کے اندر کوئی سامان وغیرہ ہوگا جو چوروں ڈاکوؤں نے واردات کے بعد بھاگتے ہوئے یہاں پھینکا ہے۔ ایک لڑکا ذرا اور نیچے اترا جہاں سے بوری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو یہ بات بتائی۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو دینی چاہیے۔
उन्होंने नंबरदार आनंद राम को ये बात बताई तो आनंद राम उसी वक्त उनके साथ कुएं पर गया और अपनी आंखों से बोरी को देखा। नंबरदार ने अपने एक आदमी को कुएं के पास खड़ा किया और खुद इन तीनों लड़कों को लेकर मेरे पास आ गया। मैंने तीनों लड़कों से चंद बातें पूछी और इस लड़के से जिसने नीचे उतरकर बोरी करीब से देखी तस्दीक की कि इसे यकीन है कि बोरी से इंसानी उंगलियां ही नज़र आ रही थीं। इस लड़के ने पूरे वसूख से बताया कि वो इंसानी उंगलियां ही थीं। मैंने 2 कांस्टेबल अपने साथ लिए और नंबरदार और लड़कों को साथ लेकर कुएं की तरफ चल पड़ा। मेरा एएसआई एक हिंदू जोगंदर पाल था। वो बड़ा समझदार और काबिल नौजवान था। उसमें एक खराबी थी कि वो शराब पीता था और अक्सर ड्यूटी के औकात में भी दौड़ लगाने से नहीं चूकता था। जोगंदर पाल उस वक्त थाने में नहीं था, वो थाने के किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैंने मुहर्रिर हवालदार से कहा कि जूं ही जोगंदर पाल आए उसे कुएं पर भेज दे। चांदी का छल्ला और साड़ी। कुएं पर जाकर मैंने ऊपर से झांक कर देखा। मुझे कुएं की तह में एक बोरी नज़र आई जो ऊपर से पूरी तरह नज़र नहीं आ रही थी। अब इस बोरी को कुएं से बाहर निकालने का मसला था। मैंने नंबरदार से कहा कि किसी ऐसे आदमी का बंदोबस्त करे जो नीचे उतर सके। उसके अलावा मैंने उसे एक मजबूत रस्सा भी मंगवाने के लिए कहा। नंबरदार ने अपना आदमी भेजकर रस्सा और मतलूबा आदमी बुला लिया। ये आदमी हिंदू था और शमशान घाट पर मुर्दे जलाने का काम करता था। मैंने उस आदमी को समझाया कि नीचे उतरकर बोरी के गिर्द रस्सा मजबूती से बांध दे। रस्सा इस तरह बांधे कि बोरी के गिर्द 3-4 बल देकर मजबूत गिरह लगा दे ताकि जब बोरी और खींची जाए तो रस्से से निकल ना जाए। उस आदमी ने नीचे जाकर मेरे कहने के मुताबिक बड़ी महारत से बोरी को बड़ी मजबूती से बांध दिया। गांव के लोगों को बोरी में बंद लाश की खबर मिल चुकी थी और बहुत से लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। मैंने 6-7 आदमियों को आगे बुलाया और उन्हें रस्सा खींचने के लिए कहा। सब ने मिलकर रस्सा खींचा तो बोरी बड़ी आसानी से बाहर आ गई। बोरी से रस्सा खोला गया और मैंने करीब जाकर देखा। मैं वो सुराख देखना चाहता था जिसका जिक्र थाने में लड़के ने किया था और बताया था कि इस सुराख से 2 इंसानी उंगलियां बाहर निकली हुई थीं। मैंने बोरी को गौर से देखा तो मुझे वो सुराख नज़र आ गया। उसमें से वाकई 2 इंसानी उंगलियां नज़र आ रही थीं। मैंने बोरी के करीब बैठकर उंगलियों को देखा। साफ पता चल रहा था कि ये किसी औरत की उंगलियां हैं। इससे जाहिर होता था कि बोरी में बंद लाश किसी औरत की है। मैंने मौका पर जो कार्रवाई करनी थी वो की और नंबरदार से कहा कि लाश को थाने पहुंचाने का बंदोबस्त करे। नंबरदार ने फौरी तौर पर एक बैलगाड़ी का बंदोबस्त कर दिया। मैंने बोरी बैलगाड़ी पर रखवाई और दोनों कांस्टेबलों को बैलगाड़ी पर साथ आने के लिए कहा। थाना वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। लाश को कुएं से निकालने और दीगर कार्रवाइयों में 3 घंटे लग गए थे। मैं थाने वापस जाने के लिए रवाना होने लगा तो एएसआई जोगंदर पाल आता दिखाई दिया। जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैं लाश बैलगाड़ी में रखवाकर थाने की तरफ रवाना हो चुका था। मैंने जोगंदर पाल को सारी तफसील सुनाई और हम दोनों थाने की तरफ चल पड़े। थाने पहुंचकर मैंने बोरी खुलवाई और लाश को बाहर निकाला। जब मेरे कहने पर कांस्टेबलों ने लाश बोरी से निकाली तो लाश देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मैं परेशान हो गया। मेरी परेशानी ये थी कि लाश के साथ उसका सार नहीं था। लाश एक नौजवान लड़की की थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा उसके जिस्मानी खद्दोखाल और जल्द से और हाथ पैरों को देखने से होता था। लाश के जिस्म पर एक साड़ी लिपटी हुई थी। ये आम सी साड़ी थी। साड़ी का कपड़ा सफ़ेद रंग का था और इस पर नीले रंग के खाने बने हुए थे। मैंने लाश का नज़री मुआयना किया। मुझे उसके जिस्म पर कहीं कोई ज़ख़म या खराशों वगैरह का निशान नज़र ना आया। एक चीज़ मुझे ऐसी नज़र आई जो तफ्तीश में काम आ सकती थी। ये चांदी का एक छल्ला था जो मकतूला के बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में था। मैंने ये छल्ला उतार लिया। ये आम गोल छल्ला नहीं था बल्कि इसकी गोलाई लहरिएदार थी। मैंने छल्ला जेब में डाल लिया। लाश की गर्दन किसी तेज़ धार आले से बड़ी सफाई से काटी गई थी। लाश के जिस्म पर साड़ी बिल्कुल ठीक बंधी हुई थी और लाश की ज़ाहरी हालत से भी ये अंदाज़ा होता था कि मरने से पहले मकतूला के साथ ज़्यादती या किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। मकतूला के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी और तशद्दुद भी नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि कत्ल का बायस कुछ और है। शनाख्त का मसला।
मेरे लिए सबसे बड़ा मसला लाश की शनाख्त का था। अगर लाश शनाख्त हो जाती तो फिर तफ्तीश करना मुश्किल ना था। बहरहाल मैंने ज़रूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दी। मकतूला के जिस्म पर मौजूद साड़ी उसे हिंदू ज़ाहिर कर रही थी। मैंने नंबरदार आनंद राम से कहा कि वो अपने इलाके में मालूम करे किसी हिंदू लड़की की कोई जवान लड़की गायब तो नहीं है। उसके बाद मैंने अपने थाने के मुखबरों को तलब किया और उन्हें कहा कि वो इर्द गिर्द के देहात में फैल जाएं और ये मालूम करने की कोशिश करें कि किसी के घर से कोई जवान लड़की गायब तो नहीं हुई। उसके बाद मैंने ये कार्रवाई करनी थी कि इर्द गिर्द के थानों से ये मालूम करना था कि किसी थाने में किसी नौजवान लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। मैंने अपने एएसआई जोगिंदर पाल से इसकी राय पूछी तो उसने दो टोक लहजे में कहा कि मकतूला हिंदू है, इसलिए हिंदू घराने से ही इसका सुराग मिल सकता है। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक रिपोर्ट में लिखा था कि मकतूला की मौत गर्दन कटने से हुई है। गर्दन को किसी तेज धार आले से बड़ी सफाई से काटा गया है। इसके अलावा मकतूल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि मकतूला कंवारी थी। ये बात मैंने ख़ास तौर पर नोट कर ली। लाश को मैंने गौर से देखा था। मेरा अंदाज़ा था कि मकतूला कंवारी होगी। रिपोर्ट में ये बात मेरे लिए हैरानी का बायस ना थी। बहरहाल मैंने मकतूला की बेसर की लाश और उसकी साड़ी जो अस्पताल वालों ने लाश के साथ एक पैकेट में भिजवा दी थी, शनाख्त के लिए थाने के सहन में रखवा दी। लाश का चेहरा तो था ही नहीं, इसलिए उसके पहचान लिए जाने का इम्कान ना होने के बराबर था। इसके अलावा मकतूला के जिस्म पर ऐसी कोई वाज़ेह निशानी या किसी ज़ख़म वगैरह का निशान भी नहीं था। मकतूला की साड़ी मैंने नुमाया करके थाने के सहन में लटका दी। लोग आकर लाश और साड़ी को देखते और लाइल्मी का इजहार करके चले जाते। लाश की हालत बुरी हो रही थी और अब बदबू छोड़ने लगी थी। मैंने लाश लावारिस करार देकर कागजी कार्रवाई की और दफन करा दी। साड़ी मैंने बदस्तूर वहीं लटकती रहने दी। इस बेसर की लाश की शोहरत इर्द गिर्द के देहात तक पहुंच गई थी और लोग दहशत ज़दा हो गए थे। हर जगह लोगों की गुफ्तगू का मौजू इसी लाश के मुताल्लिक होता था। आजकल कत्ल इसी कसरत से होते हैं कि खुदा की पनाह। इसके नतीजे में लोगों का रद्द-ए-अमल और पुलिस की लापरवाही देखकर शक होने लगता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता बला मारा गया है, जिसकी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे सारे मुखबरों की रिपोर्ट एक ही जैसी थी कि किसी घर से कोई नौजवान लड़की गायब नहीं है। एक मुखबिर ने ज़रा अलग रिपोर्ट दी। उसने बताया कि पिछले दिनों वारदात वाले कुएं से थोड़ी ही दूर खाना बदोशों ने डेरा लगाया हुआ था। उसने शक जाहिर किया कि हो सकता है ये लड़की खाना बदोशों की हो और उन्होंने इसे किसी वजह से कत्ल करके कुएं में डाल दिया हो। खाना बदोश तो आजकल भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन उस दौर के खाना बदोश बहुत ख़तरनाक हुआ करते थे। ये बड़े खूंखार लोग होते थे। कत्ल, चोरी, डाके जैसे जराइम इनके लिए मामूली सी बात होती थी। इनकी औरतें बड़ी खूबसूरत और तेज़ तरार हुआ करती थीं। ये लोग कबीले के अंदर ही शादियां करते थे और अपनी लड़कियां बाहर नहीं ब्याहते थे। अगर कोई नौजवान लड़की या लड़का कबीले के कवानीन से बगावत करता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। शहरों और देहात के नौजवान लड़के अक्सर औकात इनके गिर्द मंडलाते रहते थे, लेकिन ये औरतें किसी को घास नहीं डालती थीं। अगर कोई खाना बदोश लड़की दिल के हाथों मजबूर होकर कबीले से बाहर किसी मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो कबीले वाले उस पर सख्ती करते थे। फिर भी अगर वो बाज ना आती और कबीले से भागने की कोशिश करती तो ऐसी लड़की को कत्ल कर दिया जाता था। मैंने इस पहलू पर गौर किया तो ये बात दिल को न लगी। लड़की का लिबास खाना बदोशों वाले मफरूज़े को गलत साबित कर रहा था। खाना बदोश औरतों का लिबास ख़ास किस्म का हुआ करता था, जो घाघरा और उसके ऊपर छोटी सी कमीज़ पर मुश्तमिल होता था। इसके अलावा चांदी के भारी भरकम जेवरात उनके लिबास का लाजमी हिस्सा होता था। इन सारी बातों को सामने रखकर मैंने अपने मुखबिर के इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया और तफ्तीश का रुख हिंदू घरानों की तरफ ही रखा। निशान सिंह की निशानदेही। 3 दिन गुजर गए और मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। किसी तरफ से ज़रा सा इशारा भी ना मिला कि फ़लाँ की लड़की गायब है। मुखबिर भी नाकाम हो गए और काम की कोई इतला ना ला सके। मेरे पास सिर्फ यही एक केस ना था, थाने में और भी बहुत से केस ज़ेर तफ्तीश थे। मैंने ये केस
आर्जी तौर पर अपने एएसआई जोगिंदर पाल के सुपुर्द कर दिया और खुद दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। 2 दिनों बाद जोगिंदर पाल किसी काम से एक दूसरे गांव में गया। उस गांव का नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा। आप उस गांव का नाम बडियाला समझ लें, कुछ इसी किस्म का नाम था। वहां जोगिंदर पाल का एक सिख दोस्त रहता था, उसका नाम निशान सिंह था। बातों बातों में थाने और वारदातों का जिक्र चल निकला। जोगिंदर पाल ने मौका गनीमत जाना और निशान सिंह से कहा कि वो अपने गांव में ध्यान रखे कि किसी के घर से कोई नौजवान लड़की गायब तो नहीं है। फिर उसने निशान सिंह को कुएं से मिलने वाली बगैर सर की लाश के मुतालिक और इस साड़ी के मुतालिक बताया जो मकतूला के जिस्म पर मौजूद थी। ये सारी बात मुझे जोगिंदर पाल ने बाद में सुनाई थी। उसने बड़ी लंबी बात सुनाई थी जो मैं आपको मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। जोगिंदर पाल की बात सुनकर निशान सिंह सोच में पड़ गया। हमारे गांव की एक लड़की गायब तो है, निशान सिंह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन उसके घर वालों ने बताया है कि वो अपनी खाला के साथ रहने के लिए उसके घर गई हुई है। उसकी खाला एक तहसील के बड़े गांव में रहती है। चंद दिन पहले वहां से खत आया कि इनकी लड़की, जिनका नाम शांता है, ताउन की बीमारी से मर गई है और उसका क्रियाक्रम कर दिया गया है। शांता के घर वालों ने यहाँ उसका मातम किया और सारी रस्में की थी। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस ज़माने में ताउन की वबा आम थी और ये कहीं ना कहीं फूटती रहती थी। आजकल की तरह जदीद सहूलतें और इलाज न होने की वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं। ये बीमारी चूहों के खून में मौजूद जरासीम के ज़रिए फैलती है। शुरू में मरीज़ के गले में एक गिल्टी निकलती और फिर 2-3 दिनों में मुतासरा शख्स मर जाता। कहीं से अफवाह भी उड़ जाती कि ताउन फैल गया है तो लोग सच मान लेते और वहाँ से अपने बाल बच्चों को साथ लेकर किसी महफूज मकाम पर चले जाते थे। खाला के गांव से जब खत आया कि शांता ताउन की वजह से मर गई है तो उसके बड़े भाई मदन लाल ने सारे गांव को ये खबर सुनाई और शांता का बाकायदा मातम किया गया। निशान सिंह की ज़बानी ये सारी बात सुनकर जोगिंदर पाल को कुछ मायूसी सी हुई। उसने ये रिपोर्ट मुझे सुनाई। मुझे ये सारा वाक़या कुछ गैर हकीकी सा लगा। उसमें कई बातें गौर तलब थीं। मसलन अगर शांता वहाँ ताउन से मर गई थी तो खाला ने उसके माँ बाप को बुलाए बगैर उसकी लाश क्यों जला दी थी? क्या ख़त मिलने के बाद शांता के वालिदैन वहाँ गए थे जहाँ उनकी बेटी की मौत हुई थी? ये और ऐसे बहुत से सवालात मेरे जहन में आ रहे थे। मैंने ज़रूरी समझा कि शांता के घर जाकर अपनी तसल्ली करूं। अगले दिन मैंने जोगिंदर पाल को साथ लिया और बडियाला गांव जा पहुंचा। हम पहले निशान सिंह के घर गए। वो हमें शांता के घर ले गया। मेरे कहने पर उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। मैं और जोगिंदर पाल दरवाजे से ज़रा हटकर खड़े हुए थे। वो निशान सिंह से बातें करने लगा। अचानक उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ गई। हम दोनों वर्दी में थे। यूं ही उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ी, उसको वाज़े तौर पर झटका सा लगा और उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। इन तासुरात में खौफ का उनसर साफ नज़र आ रहा था। फिर वो अंदर चला गया। निशान सिंह ने बताया कि ये शांता का भाई आनंद लाल है। बड़े भाई का नाम मदन लाल था और वो इस वक्त घर में नहीं था। रास्ते में आते हुए निशान सिंह ने मुझे बताया था कि दोनों भाई मिलकर परचून की दुकान चलाते हैं जो नज़दीकी कस्बे में है। उम्मीद की एक किरण। थोड़ी देर बाद आनंद लाल ने बैठक का दरवाज़ा खोला और हमें अंदर ले गया। मैं, जोगिंदर पाल और निशान सिंह अंदर बैठ गए। आनंद पाल हमारे सामने खड़ा हो गया। साफ लग रहा था कि वो हमारे आने से बड़ा परेशान और खौफजदा है। मैंने उसे दिलासा दिया और उसके साथ इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उसका खौफ कुछ कम हो गया और वह मेरे साथ बातें करने लगा। आनंद लाल ने बताया कि उनका बाप मर चुका है और माँ घर में बीमार पड़ी है। आनंद लाल की अभी शादी नहीं हुई थी, जबकि बड़े भाई मदन लाल की शादी हो चुकी थी और उसकी एक 6-7 साल की बच्ची थी। उसके बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई। मदन लाल कहाँ है? मैंने पूछा। बड़े भैया इस वक्त दुकान पर हैं, आनंद लाल ने कहा। पहले टाइम वो दुकान पर बैठते हैं और दोपहर के बाद मैं जाकर उन्हें घर भेज देता हूँ। सुना है तुम्हारी एक बहन भी है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, वो कहाँ है? मैंने गौर से देखा। वो एकदम घबरा सा गया था, लेकिन फिर उसने फ़ौरन ही अपनी घबराहट पर काबू पा लिया। घबराहट का ये लम्हा इतना मुख्तसर सा था जैसे बिजली चमक कर बुझ गई हो। आप शांता के मुतालिक पूछ रहे हैं? आनंद लाल ने कहा। उसका देहांत हो गया था जी।
कब? मैंने पूछा। उसने 8-10 दिन पहले की एक तारीख बताई। तुम्हारी बहन शांता कैसे मर गई? मैंने पूछा। क्या वो बीमार थी? वो तो जी भली चंगी थी, आनंदलाल ने जवाब दिया। खाला के घर गई थी, वहाँ प्लेग की वबा फैल गई। वो इसी बीमारी में मुब्तला होकर मरी थी। क्या तुम लोग उसके क्रियाक्रम में शामिल हुए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, आनंदलाल ने कहा। खाला ने बीमारी फैलने के डर से फौरन ही उसका क्रियाक्रम कर दिया था। फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? मैंने पूछा। खाला ने उसी दिन हमें खत लिख दिया था जिस दिन शांता मरी थी, उसने कहा। खत मिलने के बाद तुम लोग वहाँ गए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, आनंदलाल ने कहा और हमसे नज़रें चुराने लगा। मुझे इसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत। उनकी जवान बहन मर गई थी और वो उसकी चिता तक देखने नहीं गए थे। ये बड़ी अनहोनी बात थी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे दाल में कुछ काला ज़रूर है। क्यों नहीं गए थे? मैंने पूछा। मरने वाली तो मर गई थी जी, आनंदलाल ने कहा। हमने वहाँ जाकर क्या करना था? ख्वाह इतना सफ़र करते और किराए वगैरह में पैसे ज़ाय करते। दुकान बंद करने से अलग नुकसान होना था। यही सोचकर हमने सब्र कर लिया था। अभी उसका जवाब पूरा हुआ ही था कि बैठक के दूसरे दरवाजे से, जो घर के अंदर खुलता था, एक 6-7 साल की बच्ची अंदर आ गई। अभी वो कुछ कहने भी नहीं पाई थी कि आनंदलाल गोली की तेज़ी से उठा और झपट कर बच्ची को घर के अंदर की तरफ ले गया। मैं, जोगिंदरपाल और निशान सिंह इसकी इस हरकत पर हैरान रह गए। कोई आम आदमी होता तो इस बज़ाहिर मामूली बात पर इतनी तवज्जो ना देता, लेकिन मैं थानेदार था और हर बात पर गौर करता था। मैंने हस्बे आदत सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आनंदलाल ने इतनी तेज़ी दिखाई। मैंने अपने जहन में वो सारा मंजर दोबारा दोहराया और मेरे जहन में रिप्ले की तरह वो मंजर चलने लगा। बच्ची का अंदर आना, आनंदलाल का बड़ी तेज़ी से उठना और झपट कर तकरीबन घसीटते हुए उसे बैठक से बाहर ले जाना। मैं जितना उस पर गौर करता उतना ही जहन उलझ जाता। कोई बात ऐसी थी जो मेरे जहन में चुभ रही थी। गौर करते करते अचानक मेरे जहन में रोशनी सी चमकी और वह बात मेरी समझ में आ गई। मैंने पहले इस पर गौर ही नहीं किया था। मेरे जहन में चुभने वाली चीज़ अंदर आने वाली बच्ची के कपड़े थे। बच्ची ने जो कपड़े पहने हुए थे उनका डिज़ाइन हूबहू वही था जो मकतूला की लाश से मिलने वाली साड़ी के कपड़े का था। वही दरमियाना सा सफ़ेद रंग का कपड़ा और उस पर बने हुए नीले रंग के खाने। मैंने इस बात को जहन में रख लिया। आनंदलाल बच्ची को अंदर छोड़कर आया तो मैंने उसके साथ कुछ बातें और की और फिर वहाँ से आ गया। आग पानी का मिलन। वहाँ से निकले तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। निशान सिंह बड़ा इसरार करके हमें अपने घर ले गया। उसने सिखों वाली रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए हमें बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया। खाने के बाद मैंने निशान सिंह से पूछा कि इसे याद है कि शांता किस दिन अपनी खाला के साथ गांव से गई थी और क्या उसने इसे गांव से जाते वक्त देखा था। निशान सिंह ने इनकार में सर हिलाकर बताया कि उसने नहीं देखा। आप जो भी मालूम करना चाहते हैं वो मुझे बता दें। निशान सिंह ने कुछ सोचकर कहा। मैं आपकी मतलूबा मालूमात हासिल कर लूँगा। निशान सिंह था तो सिख, लेकिन आम सिखों की तरह नहीं था। वो बड़ा सुलझा हुआ और धीमे मिजाज का सिख था। वो कम बोलता था और सोच कर बात करता था। मैंने उससे काम लेने का फ़ैसला कर लिया। मैंने उसे समझाया कि वो मालूम करे कि जिस दिन शांता अपनी खाला के साथ गई थी उस दिन उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। कपड़े का रंग और डिज़ाइन भी मालूम करना था। मेरे जहन में जिस शक ने सर उभारा था मैंने उस पर काम शुरू कर दिया था। ज़रूरी नहीं था कि मेरा शक ठीक निकलता। मेरे शक की बुनियाद मकतूला की साड़ी का कपड़ा था। ऐसे ही कपड़े का लिबास मदन लाल की बच्ची ने पहन रखा था। मैं एक बड़ी ही मुहूम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहा था। ऐसा कपड़ा बाज़ार में बहुत बिकता होगा और बहुत से लोगों ने ख़रीदा होगा। अगर सिर्फ कपड़े ही की बात होती तो शायद मैं इतनी तवज्जो ना देता। मेरे जहन में शांता का खाला के घर जाकर ताउन से मरना, उसके घर वालों का इसकी आखिरी रसूमात में शरीक ना होना, पुलिस को देखकर घबराना और सबसे बढ़कर आनंदलाल का बच्ची को दबोचकर बैठक से बाहर ले जाना। साफ जाहिर हो रहा था कि वो नहीं चाहता होगा कि हमारी नज़र कपड़ों पर पड़े। ये सारी बातें ऐसी थीं कि ज़रा सी भी अक्ल रखने वाला तफ्तीशी अफसर इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वहाँ से हम थाने वापस आ गए। थाने से कुछ ही फासले पर मुझे रिहाइश के लिए एक छोटा सा मकान मिला हुआ था। यह सरकारी था। शाम को जब मैं घर लेटा आराम कर रहा था तो थाने से एक कांस्टेबल आ गया। मैंने अपने सारे स्टाफ से कह रखा था
कि कोई इमरजेंसी हो या कोई ज़रूरी मसला हो तो वो आधी रात को भी मुझे जगा लिया करें। कांस्टेबल ने बताया कि एक सिख आपसे मिलना चाहता है और कहता है कि उसके पास आपके लिए एक ज़रूरी इतला है। मेरे जहन में फ़ौरन निशान सिंह का चेहरा घूम गया। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि इस सिख का नाम क्या है, तो कांस्टेबल ने मेरे जहन में उभरने वाले ख्याल की तस्दीक कर दी। मुझसे मिलने के लिए आने वाला सिख निशान सिंह ही था। मैं उसी वक्त कांस्टेबल के साथ थाने की तरफ चल पड़ा। थाने पहुंचे तो निशान सिंह मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे के जोश से जाहिर हो रहा था कि कोई अहम खबर लाया है। मैंने उसे अपने कमरे में बिठा लिया। उसने जो मालूमात हासिल की थीं वो मुझे सुना दी। वो बड़ी अहम इतला लेकर आया था। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग रोशन हो गया। उससे पहले मैं अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहा था। निशान सिंह ने जो बात सुनाई वो मैं अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। निशान सिंह की बीवी बड़ी तेज़ तरार और जिंदा दिल औरत थी। निशान सिंह ने उससे बात की तो उसने कहा यह कोई मुश्किल काम नहीं है। वो इसी वक्त शांता की एक सहेली के घर चली गई। शांता और उस लड़की में बड़ी गहरी दोस्ती थी। निशान सिंह की बीवी का शांता की इस सहेली के घर आना जाना था। निशान सिंह की बीवी ने बातों बातों में शांता की बातें शुरू कर दी। शांता की ये सहेली मुसलमान थी और उसका नाम सईदा था। शांता का जिक्र सुनकर सईदा जज्बाती हो गई और खुद ही उसकी बातें करने लगी। बातों बातों में निशान सिंह की बीवी ने बड़ी उस्तादी से गुफ्तगू का रुख इसकी और शांता की आखिरी मुलाकात की तरफ मोड़ दिया, जिस दिन वो अपनी खाला के साथ गई थी। मुझे कहकर गई थी कि एक हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी। सईदा ने निशान सिंह की बीवी को बताते हुए कहा, लेकिन उसे वापस आना नसीब ही ना हुआ। जिस दिन वो गई थी सुना है बड़ी प्यारी लग रही थी। निशान सिंह की बीवी ने कहा, उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे? सईदा ने उसे बताया कि शांता ने उस रोज़ नीले रंग की खानों वाली नई सफ़ेद साड़ी पहनी थी। ये साड़ी उस पर बहुत जच रही थी। अब तो शांता मर गई है, सईदा ने निशान सिंह की बीवी से कहा, इसलिए ये बात बताने में कोई हर्ज नहीं है। शांता ने अपना ये राज सिर्फ मुझे बताया था। वो एक मुसलमान लड़के को पसंद करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। इस लड़के का नाम अकबर है और वो साथ वाले गांव के एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर वो मर न जाती तो उसने घर से भाग जाना था और मुसलमान होकर अकबर से शादी कर लेनी थी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें थीं, लेकिन वो मैं यहाँ बयान करना ज़रूरी नहीं समझता। इन मालूमात की रोशनी में मुझे साफ नज़र आने लगा था कि कुएं से बोरी में बंद बेसर की लाश शांता की है और उसे इसके भाइयों ने कत्ल किया है, या इस कत्ल में उनका हाथ ज़रूर है। ये महज इत्तफाक भी हो सकता था कि शांता ने उसी रोज़ वही साड़ी पहनी हुई थी जैसी मकतूला की लाश से मिली थी। वैसे भी इस किस्म की बातों से किसी के खिलाफ अदालत में जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। मैंने शांता की सहेली से मिलना ज़रूरी समझा। इससे बहुत काम की बातें मालूम हो सकती थीं। मैंने निशान सिंह को शाबाश दी और उसका शुक्रिया अदा किया। निशान सिंह खुश हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं शांता की सहेली सईदा से मिलना चाहता हूँ और वो इस सिलसिले में मेरी मदद करे। निशान सिंह ने कहा कि उसकी बीवी का सईदा के यहाँ आना जाना है और वो कल सुबह किसी बहाने से उसे अपने घर बुला लेगी।